سرکاری ملازموں کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت 10% بڑھ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ تنخواہ دار طبقے پر سرچارج ٹیکس کا خاتمہ، 50 کروڑ تک آمدن پر سپر ٹیکس اور غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم متعارف۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ کار میں توسیع، مستحقین کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچانے کا اعلان۔ ڈیبٹ و کریڈٹ کارڈ والوں کے لیے ریلیف، بین الاقوامی ٹرانزیکشن ٹیکس 5% سے کم کر کے 0.5% مقرر۔ خواتین اور عوامی صحت کے لیے حکومت کا اہم اقدام، خواتین کے لیے ٹیمپونز، سینیٹری پیڈز پر 18% سیلز ٹیکس مکمل طور پر ختم کر دیا۔ خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات پر عائد 18% سیلز ٹیکس کا بھی مکمل خاتمہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ میں صنعتوں، ایکسپورٹرز، شپنگ، ریفائننگ، پراپرٹی اور IT سیکٹرز کے لیے بھی بڑے ریلیف۔ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کا تخمینہ 18,771 ارب روپے لگایا گیا۔ وزیر خزانہ کی قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر، کہا سود کی ادائیگی کے لیے 8,054 ارب، دفاعی امور کے لیے 3,000 ارب روپے مختص، پینشن کے لیے 1,169 ارب، دفاعی پینشن کے لیے 822 ارب اور سول پینشن کے لیے 272 ارب روپے رکھ دیے گئے۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,264 ارب مقرر، نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب، معاشی شرح نمو کا ہدف 4% تجویز، زراعت کی ترقی کا ہدف 3.8%، صنعتوں کی شرح نمو 4% رہنے کی توقع، مہنگائی کی شرح 8.2% تک محدود رکھنے کا ہدف مقرر، پیٹرولیم لیوی سے 1,727 ارب وصول کرنے کا منصوبہ، تجارتی خسارہ 37 ارب ڈالر سے بڑھنے کا خدشہ، وفاقی PSDP کا حجم 1,000 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ، تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا ریلیف۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر عائد کردہ 10% سرچارج مکمل طور پر ختم کر دیا۔ سالانہ 22 لاکھ سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 23% سے کم کر کے 20% مقرر، سالانہ 32 لاکھ سے 41 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 30% سے کم کر کے 25% کر دیا گیا۔ سالانہ 41 لاکھ سے 56 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 35% سے کم کر کے 29% مقرر، سالانہ 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تنخواہ پر ٹیکس 35% سے کم کر کے 32% کر دیا گیا۔ سالانہ 70 لاکھ سے زیادہ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح برقرار، 10% سرچارج ختم کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان۔ حکومت نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر عائد مختلف ٹیکسوں میں نمایاں کمی کر دی۔ 5 کروڑ روپے تک کی پراپرٹی کی فروخت پر ٹیکس 4.5% سے کم کر کے 2.75% کر دیا گیا۔ 5 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی پراپرٹی کی فروخت پر بھی ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.75% کر دیا۔ پراپرٹی کی خریداری پر بھی ٹیکس میں نمایاں کمی، 5 کروڑ روپے تک مالیت کی پراپرٹی کی خریداری پر ٹیکس 1.5% سے کم کر کے 1.25% مقرر، 5 سے 10 کروڑ مالیت کی پراپرٹی کی خریداری پر ٹیکس 2% سے کم کر کے 1.25% کر دیا گیا۔ 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی پراپرٹی کی خریداری پر بھی ٹیکس 1.5% سے کم کر کے 1.25% کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا اس اقدام سے تمام بڑی کیٹیگریز میں سرمایہ کاروں کو یکساں ریلیف ملے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں برآمدات اور صنعتوں کے فروغ کے لیے بڑا اقدام، برآمد کنندگان کے لیے ایڈوانس اور کم از کم ٹیکس 2% سے کم کر کے 1.25% مقرر، 50 کروڑ روپے تک کاروبار کرنے والے ایکسپورٹرز پر سپر ٹیکس مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ 50 کروڑ روپے سے زیادہ کاروبار کرنے والے ایکسپورٹرز پر سپر ٹیکس 10% سے کم کر کے 8% کر دیا گیا۔ حکومت کا شپنگ انڈسٹری کے لیے بھی بڑا ریلیف، شپنگ انڈسٹری پر عائد 18% سیلز ٹیکس کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پراپرٹی پر عائد 1% کیپٹل ویلیو ٹیکس کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ حکومت کا IT اور فری لانسنگ سیکٹر کے لیے خوش آئند فیصلہ، انکم ٹیکس کی موجودہ 0.25% رعایتی شرح کو برقرار رکھنے کا اعلان۔ فیصلے سے اس شعبے کو پالیسی کا تسلسل اور اعتماد حاصل ہوگا۔ بجٹ میں ڈیجیٹل اور آن لائن ادائیگیوں کے لیے بڑا ریلیف، کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ سے ادائیگی پر ود ہولڈنگ ٹیکس
5% سے कम करके 8.5% कर दिया। फैसला डिजिटल अदायगियों को फ़रोग देने, सारिफीन पर माली बोझ कम करने और पाकिस्तान में कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग की जानिब एक अहम कदम। हुकूमत का बजट में रिफाइनिंग सेक्टर के लिए भी बड़े रिलीफ का ऐलान। ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन और दरामदात पर 18% सेल्स टैक्स को मुकम्मल खत्म कर दिया। बजट 2026-27 में एफपीआर महसूलात का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर। रवा माली साल के नजरसानी शुदा महसूलात 12,983 अरब रुपए। आइंदा साल 17.6% इजाफे का हदफ। नॉन टैक्स रेवेन्यू 5,336 अरब तक बढ़ाने की तजवीज़। मजमूई कौमी आमदन 20,600 अरब तक पहुँचाने का हदफ। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 8,848 अरब मुंतकिल किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 11,751 अरब मुकर्रर। विफाकी अखराजात का हुजूम 18,771 अरब रुपए तक पहुँच गया। विफाकी बजट खसारा 7,020 अरब रहने का इम्कान। सूबाई सरप्लस का हदफ 1,794 अरब मुकर्रर। मजमूई माली खसारा 5,226 अरब रुपए। GDP का 3.6% मुकर्रर। प्राइमरी सरप्लस 2,828 अरब मुकर्रर। GDP का 2% मुकर्रर। बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब से बढ़ाकर 838 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के लिए 146 अरब, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के लिए 88 अरब रुपए रखे गए। बैतुल माल के लिए 10 अरब, आला तालीम कमीशन के लिए 65 अरब रुपए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 54 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को मुंतकिल किए जाने वाले मजमूई फंड्स के लिए 8,848 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सूबाई हिस्सों में पंजाब का शेयर सबसे ज़्यादा 4,402 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सिंध के लिए 2,207 रुपए का सूबाई हिस्सा रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के 1% हिस्से समेत 1,443 अरब मुख्तस। बलूचिस्तान के लिए 795 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। विफाकी बजट में पावर सेक्टर के लिए सब्सिडी 893 अरब से कम करके 830 अरब रुपए मुख्तस। गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस। के इलेक्ट्रिक टैरिफ फर्क कीमत में सब्सिडी 163 अरब रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी 81 अरब रुपए मुकर्रर। जमशुदा ज़िला के लिए 34 अरब। बलूचिस्तान के ज़रिए ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब की सब्सिडी। पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड के लिए 48 अरब। पास्को के लिए गंदम ज़खायर और कीमत के फ़र्क की मद में 19 अरब रुपए सब्सिडी मुख्तस। यूरिया खाद की पैदावार और फराहमी के लिए 5.8 अरब। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के लिए 8 अरब की सब्सिडी। पेट्रोलियम शोबे की सब्सिडी आइंदा माली साल में खत्म करने की तजवीज़। आइंदा बजट में IBPs को बराह रास्त अदायगी खत्म। विफाकी बजट में सिंध के लिए तरक्याती फंड्स पंजाब से बढ़ गए। आइंदा माली साल के लिए सूबा सिंध के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 770 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब के तरक्याती बजट के लिए 749 अरब तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती बजट का हजम 455 अरब। बलूचिस्तान के तरक्याती फंड्स के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस। मजमूई कौमी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3,675 अरब रुपए मुकर्रर। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी इदारों के तरक्याती मंसूबों के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी वजारतों के लिए 682 अरब 48 करोड़ रुपए मुख्तस। NHA के लिए 224 अरब 51 करोड़ के तरक्याती फंड्स मुख्तस। IB वसाइल डिवीजन को 103 अरब 80 करोड़ देने की तजवीज़। पावर डिवीजन और NTDC के लिए 88 अरब मुख्तस। काबीना डिवीजन के लिए 64 अरब 8 करोड़ से जायद फंड्स तजवीज़। आला तालीमी कमीशन के लिए 46 अरब रुपए तरक्याती बजट में शामिल। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। बजट 2026-27 तरक्की और अवामी रिलीफ का बजट है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कहा, हुकूमत ने मईशत को बहरान से निकाल कर इस्तेहकाम की राह पर डाला। पाकिस्तान की आलमी साख बेहतर हुई। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का एतमाद बहाल हुआ। मुआशी इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम हासिल किया गया। महंगाई में नुमाया कमी और माली नज़्म ज़ब्त हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। सनती शोबे और बड़ी सनतों की पैदावार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आलमी एतमाद का इजहार है। निजकारी प्रोग्राम को तेज किया जा रहा है।
قوमी इदारों के इस्लाहात जारी हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी बजट पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने बजट इजलास के बायकॉट का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने मना लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्दिस्तान में मैंडेट चोरी किए जाने का इल्जाम। कहा ऐसा नहीं हो सकता, जीबी में मैंडेट चोरी होता रहे और वो इजलास में तालियां बजाते हैं। वो नून लीग के नहीं, रियासत के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मुलाकात की। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी साथ थे। हुकूमती वफ़द ने बायकॉट का फैसला वापस लेने पर जोर दिया, लेकिन बिलावल नहीं माने। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बाद में बिलावल भुट्टो को मनाने में कामयाब हो गए। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बजट इजलास के बायकॉट का फैसला बिलावल भुट्टो ने किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं। कौमी मफाद के तहत पीपीपी बजट कार्रवाई का हिस्सा होगी। शरीफ रहमान ने कहा बजट मंजूर कराने के अमल में पूरी तरह हिस्सा लें। पिछले 2 बजट में IMF के कहने पर टैक्स लगाने से महंगाई हुई, अब बेहतर बजट पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा आम आदमी की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। 2 साल में हुकूमती कोशिशों से महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद 22.5% से कम होकर 11% पर आ चुकी। पाकिस्तान के मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामज़न है। तमाम मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत मुस्तहकम है। उम्मीद है तीसरा बजट मईशत को मज़ीद तेज़ी से आगे लेकर जाएगा। सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज जैसे तवानाई ज़राए पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कौमी हम आहंगी और मौसर ताउन से चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। विफाक के साथ ताउन पर सूबों और इत्तेहादी जमातों के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी का खात्मा होकर रहेगा। विफाकी काबीना ने बजट दस्तावेजात और फाइनेंस बिल मुसव्विदी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल थे। मुलाकात में विफाकी बजट पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अवामी फलाह के एजेंडे पर मुश्तरका कोशिशों के तसलसल पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने MKM के किरदार को काबिल कदर करार दिया। कहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात है। MKM और हुकूमत के दरमियान इश्तराक अमल मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर।